Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our application AIMS tutorial. In this video, we'll be discussing chapter 5 admission of a partner, problem number 9, page number 245. Here is the question, page number 9, page number 245, problem number 9. P and Q are partners sharing profit and losses equally. कौन-कौन है partners? P and Q Profit sharing ratios क्या है? equally. Equally मतलब जो भी amount बांटना है वो आधा आधा बटेगा. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. We are provided with additional information that on the above date, Mr. R was admitted into partnership for 2/9 share in future profits of the firm. The following are terms of admission. नया पार्टनर कौन आ रहा बिजनेस में? R. R. So R should bring 40,000 as capital and 16,000 as goodwill. Half of their share of goodwill will be withdrawn from the business by old partners. इसका मतलब क्या? गुडविल आधा निकाले रहे बिजनेस में से. मतलब नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट ला रहे वो पुराने पार्टनर्स में बांटने के बाद वॉट एवर विल बी द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स पी एंड क्यू, पी विल बी विथड्रॉइंग हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड क्यू विल बी विथड्रॉइंग हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल जो भी मिला उसमें से पी अपना आधा अमाउंट निकालेंगे, क्यू अपना आधा अमाउंट निकालेंगे. हमें क्लियर? Yes sir. Exploit for bad debts at 5% on trade debtors. Buildings are to be valued at 50,000. New profit sharing ratio of P, Q and R would be 4:3:2. Give general entries, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ PQR. So in this video we'll be discussing ledger accounts and balance sheet. ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस इक्वली दिया हुआ है, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. देन अगेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग PQR इज स्पेसिफाइड. तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ रहता है, आपने को क्या मालूम करना है? am I audible? Sacrificing ratio. जी. When old ratio and new ratio both, Yes sir. we need to calculate sacrificing ratio. So continuing with the solution, the following are the ledger account that we prepare. First we'll be calculating sacrificing ratio. Sacrificing ratio तब मालूम करेंगे जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ रहता. तो ओल्ड रेशियो ऑफ P is to Q is 1:1 and new ratio of P is to Q is to R is 4:3:2. So formula for calculating sacrificing ratio is Old ratio minus new ratio. sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio. यहाँ पे P का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2. 1/2. न्यू रेशियो क्या है? 4/9. 4/9. तो P इक्वल टू 1/2 minus 4/9. 9 1 जा 9 minus 2 4 जा 8 divided by 2 9 जा 18. So it works out to be 9 minus 8 1/18. Q के लिए क्या लिखेंगे आप? Q इक्वल टू 1/2 minus 3/9. So 9 1 जा 9 minus 3 2 जा 6. 9 minus 6 it is 3 divided by 2 9 जा 18. So the sacrificing ratio of P is to Q is 1:3. So here it will be taken as Yes sacrificing sir. of P is to Q equal to 1:3. So 1 plus 3 क्या होते हैं? 4. Whatever the amount is of goodwill is to be distributed among P and Q, it will be distributed as 1/4 for P and 3/4 for Q. Am I clear? Yes sir. Continuing with the solution, these are the ledger accounts that we prepare: revaluation account, cash account, goodwill account, partners capital account, balance sheet. New balance sheet of P, Q and R as on 31st March 2020. The format for revaluation account is particulars amount rupees. For cash account it is particulars amount rupees. For goodwill it is particulars amount rupees. For partners capital the format is particulars PQR rupees. The format for balance sheet is liabilities amount, assets amount rupees. अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखिए. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो अपना एडजस्टमेंट क्या है? आर शुड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, 16,000 एज गुडविल. हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल विल बी विथड्रॉन. ये पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे. Provide for bad debt at 5% on debtors. So as there is decrease in the value of asset, it will be recorded on debit side as 2 PBD. PBD का मतलब Provision for bad debts. ये आपको पूरा लिखना है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. इट इज गिवन एज 5% ऑन ट्रेड डेप्टार्स. ट्रेड डेप्टार्स की वैल्यू क्या है? 40,000. 40,000, जिसमें से प्रोविजन 800 का माइनस करा हुआ है. तो इट इज 39,200. तो अपन ये 5% किस पे निकालेंगे? 40,000 पे. 40,000 पे. इफ यू रिमेम्बर प्रॉब्लम नंबर 3, उसमें भी सेम ऐसी था ना. डेप्टार्स 21,000 माइनस प्रोविजन 1,000, 20,000 Yes sir. में Yes sir. 8% कैलकुलेट करे थे. 1680 माइनस 1,000 करे थे.
यस सर। तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना है। ट्रेड डेप्टार्स 40,000 का 5% 2,000 आता, जिसमें से ऑलरेडी 800 का प्रोविजन मेंटेन करे, तो 2,000 माइनस 800 वी नीड टू शो ए प्रोविजन ऑफ 1,200। देयर इज द कैलकुलेशन 4,000 इंटू 5/100 विच वर्क्स आउट टू बी 2,000। अपने को टोटल प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, 2000। जिसमें से पहले से क्वेश्चन में प्रोविजन कितना मेंटेन करा हुआ है। 800। अपने को प्रोविजन कितने पे मेंटेन करना है अभी, 39,200 पे। 39,200 करेंगे, या टोटल प्रोविजन कितना मेंटेन करना था। टोटल 40,000 पे मेंटेन करना टोटल है। 40,000 पे मेंटेन जो करना था 5%, वो 2,000 है, यस सर। जिसमें से आप ऑलरेडी 800 का प्रोविजन पहले से मेंटेन करे, तो स्टिल यू हैव टू मेंटेन 1200। 1,200। नाउ 1200। हाँ, अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे आप। डेप्टार्स 40,000 था, जिसपे से अपने को टोटल प्रोविजन 2,000 का मेंटेन करना है, तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000, 40 माइनस 2 38,000। हमें क्लियर। यस सर। अब आप यहाँ पे 40 माइनस 2 38 बता सकते, या फिर 39,200 माइनस 1,200 38 बता सकते, बट 40 यस सर। बताना सही है। हमें क्लियर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट 50। बिल्डिंग्स की वैल्यू क्या है, 45,000। 45 को 50 करना है, सो इट इज इंक्रीज इन असेट विच विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 45,000 से 50,000, मतलब इंक्रीज इन असेट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बिल्डिंग्स 5,000। इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे आप। बिल्डिंग्स 45,000 बिल्डिंग 45,000 था, प्लस प्लस अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन 5,000। 5,000, 45 प्लस 5 इट बिकम्स 50,000 आगे। 50,000। The new profit sharing ratio of PQR would ये be तो four अपने को is to three is सैक्रिफाइसिंग to रेशियो two. में खत्म हो गया है पॉइंट। अब इसका टोटल Yes sir. कैलकुलेशन में, द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 1,200, द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 5,000। कौन सा टोटल ज्यादा है। 5,000. On both the sides will be rating the total as 5,000, 5,000. 5,000 minus 1,200. 5 minus 1, 4. 4 minus 200, 3,800. It is profit on revaluation which will be distributed among P and Q equally. So to profit transfer to P capital account 3,800 into 1 by 2, 1,900. Q capital account 3,800 into 1 by 2, 1,900. यहाँ पे स्पेलिंग कैपिटल पूरा लिखेंगे और ए बाई सी अकाउंट अकाउंट लिखेंगे। हमें क्लियर। Yes sir. नेक्स्ट, हाउ डू वी स्टार्ट कैश अकाउंट। To balance brought down. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड हाउ डू वी स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। By balance brought down. ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट अपने को कहाँ मिलता है क्वेश्चन में। Asset side. सेट साइड चेक करके बोलिए। 9,800. 9,800। वेयर डू वी गेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, Liabilities. लायबिलिटी साइड। 50,000 फॉर पी, 50,000 फॉर क्यू। अब नया Q. कौन आ रहा बिजनेस में। R. आर अपने साथ 40,000 कैपिटल के लेके आ रहा, 16,000 गुडविल के लेके आ रहा। कैश के रूल्स क्या है। If cash is coming to the business, it will be recorded on debit side. If cash is going from the business, it will be recorded on credit side. अब ये प्रॉब्लम में गुडविल विथड्रॉन का है, तो पैसा आ रहा भी, बाद में पैसा जा रहा भी। तो पहले जो पैसा आ रहा वो डेबिट में लिखेंगे टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा बंदा, 40,000। 40,000. टू गुडविल अकाउंट 16,000। तो अब ये लोगों के पास 40 50 59 65 800 है। तो द टोटल ऑन कैश ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इज 65 800। द सेम विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड एज 65 800। अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम में हम गुडविल विथड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट की बैलेंसिंग अभी कर देना या बाद में करेंगे। बाद में करना। बाद में करेंगे, तो इसको फिल वक्त यहाँ पे रोक देंगे। नेक्स्ट, सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखना। दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखना। कैश के अकाउंट में आर का नाम लिखे, आर के अकाउंट में पी का नाम। आर कैश के अकाउंट में आर का नाम लिखे, आर के अकाउंट में कैश का नाम लिखना। यहाँ डेबिट में लिखे, वहाँ क्रेडिट में लिखना। यहाँ पे क्रेडिट में अब लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, आर के अकाउंट में लिखेंगे 40,000। फिर उसी तरह कैश के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखे, गुडविल के अकाउंट में कैश का नाम लिखना। कैश का नाम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 16,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे आप बांटेंगे। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब मालूम करेंगे, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर स्पेसिफाइड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को आया था टू पी कैपिटल 1:3. 1:3 आया था, जो बांटेंगे 1/4। 16,000 when divided into 4 shares, the value of each share is 4,000. As he has one share, he'll be getting 4,000. To Q capital account 16,000 into 3/4, as he has 3 shares, he'll be getting 12,000. तब गुडविल के अकाउंट में इन दोनों का नाम लिखे, इन दोनों के अकाउंट में गुडविल का नाम लिखेंगे। गुडविल का नाम लिखना। तरफ 16 16 लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट ही गॉट 4,000, ही गॉट 12,000। हमें क्लियर। यस सर।
रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में दोनों का नाम लिखे थे, रिवैल्यू टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1900 फॉर पी, 1900 फॉर क्यू। दो चीजें क्या रहे थे? जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व कितना है? 15,000। 15,000 which will be distributed equally in the sense 7,500 each बाई जनरल रिजर्व्स। ये बंदे को 7.5 मिलेंगे, ये बंदे को 7,500 मिलेंगे। और कुछ है? नहीं। नहीं है। तो टोटल करिए, द टोटल ऑफ पी इज 63,400 which will be recorded on both the sides of P capital account. The total for Q is 71,400 which will be recorded on both the sides of Q capital account. The total for R is 40,000 which will be recorded on both the sides of R account. अब इसको डायरेक्ट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है या पहले गुडविल विथड्रॉ करके डिडक्ट करना है? गुडविल गुडविल विथड्रॉ करके कैश हम डाउन ब्रॉट अपने डाउन से करना है। विड्रॉ करेंगे या क्वेश्चन स्पेसिफाई करता विड्रॉ करना है? क्वेश्चन स्पेसिफाई करता। अब ये प्रॉब्लम में क्या स्पेसिफाई करा? हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल में बी विड्रॉन। हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन द सेंस टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल क्या था? टोटल अमाउंट 4,000। टोटल अमाउंट 12,000। ऑफ गुडविल क्या था पूछा मैं, शेयर ऑफ गुडविल। टोटल अमाउंट 16,000। हाँ टोटल सिक्सटीन अमाउंट थाउजेंड था, 16,000। जिसमें से जब डिस्ट्रीब्यूट करे आप, पी का शेयर क्या है? 4,000। क्यू का शेयर क्या है? 12,000। तब पी कितने विड्रॉ करेंगे? 2,000। 2,000। क्यू कितने विड्रॉ करेंगे? 6,000। 6,000। तब कैश के रूल्स क्या है? पैसे जा रहे तो क्रेडिट में लिखना। यहाँ बांटे जब, जो पी को 4,000 मिले, क्यू को 12,000 मिले, पी इसमें से आधा अमाउंट 2,000 निकालेंगे, क्यू इसमें से आधा अमाउंट 6,000 निकालेंगे। यहाँ पे कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाई पी कैपिटल अकाउंट 2,000, बाई क्यू कैपिटल अकाउंट 6,000। हमें क्लियर? यस सर। सिर्फ इसको यहाँ से डायगोनल लेना है, बाई पी बाई क्यू, क्योंकि ये लोग पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे। अगर पूरा विड्रॉ करते तो बाई पी कैपिटल 4 बाई क्यू कैपिटल 12 लिखते थे, बट एज दे आर विथड्रॉइंग यस सर। हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल, ओनली हाफ अमाउंट विल बी विथड्रॉन। कैश के अकाउंट में पी और क्यू का नाम लिखे, पी और क्यू के अकाउंट में कैश का नाम लिखेंगे। टू कैश कैश का नाम लिखेंगे। ड्रॉइंग 2,000, ही इज विथड्रॉइंग 6,000। अब बैलेंसिंग करिए, 65,800 में से अपने को 8,000 कम हो गए, क्या पैसे बच रहे? बाई बैलेंस कैरी डाउन 57,800, the same will be brought down on opposite side as to balance brought down 57,800। अब ये 63,400 में से कितने कम हो जाएंगे? 2,000। It will be shown as to balance carried down 61,400, the same will be shown on opposite side as by balance brought down 61,400। फिर ये बंदे के 71,400 में से कितने कम हो जाएंगे? 6,000। It will be shown as to balance carried down 65,400, the same will be brought down on opposite side as by balance brought down 65,400। R के लिए carried down 40,000, the same will be brought down on opposite side as 40,000। Now we are preparing new balance sheet of PQR as on 31st March 2020। सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे, कैपिटल्स पी का अमाउंट है 61,400, क्यू का अमाउंट है 65,400, आर का अमाउंट है 40,000। अदर लायबिलिटीज क्या है चेक करिए। बिल्स पेबल इसको कुछ करें? 10,000। नहीं। जैसा है वैसा लिखिए, बिल्स पेबल 10,000। आगे बढ़िए। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, इसको कुछ नहीं करे, जैसा है वैसा लिखिए। आगे बढ़िए। जनरल रिजर्व्स। यहाँ पे बांट के क्लोज कर दिया। नेक्स्ट। क्रेडिटार्स 25,000। इसको कुछ करे? नहीं। जैसा है वैसा लिखिए, क्रेडिटर्स 25,000। पूरे चीजें हो गए, यस सर। कैपिटल्स थे जो लिख दिए हम। नाउ कमिंग टू यस सर। असेट्स में कैश है, ये लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट। बिल्स रिसीवेबल बिल्स स्टॉक है, 10,000। कंप्लीट कर देंगे। स्टॉक आ गया, तो स्टॉक कितना था? 31,000 था, ये जैसा है वैसा लिखे। नेक्स्ट फर्नीचर था, फर्नीचर को भी कुछ नहीं करे तो जैसा है वैसा लिखेंगे 35। नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग 45 + 5 50। तो दो चीजें जो बताने के थे, क्या थे वो? एक है बिल्स रिसीवेबल 10,000, दूसरा है कैश। तो आज ये लोगों के पास कैश कितना है? 57,800। So it will be shown on new balance sheet as 57,800। Am I clear? यस सर। The total of liabilities is 221,800. The same will be the total for assets as 221,800। Am I clear? यस सर। Hope you all have understood the topic. See you all in next video. Thank you. Thank you, Muzammil. थैंक यू सर।